Dear students, yesterday we were discussing experiments of Leonard and R. A. Millikan on photoelectric effect. Now come over on the basis of his observation, they given some laws. Question is this: what are the different main points of their laws? Come over, laws of photoelectric emission. According to Leonard and Millikan, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation, let us suppose material is given, means material is fixed, frequency जो हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं वह भी फिक्स्ड है. The photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Right? Means when intensity will be more, photocurrent will be also more. And the saturation current is directly proportional to the intensity of incident radiation. Means when intensity will be more, number of incident photons will be more, means number of ejected electrons will be more, so current will be also more and saturation current will be also more. Number 2, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted, howsoever high is the intensity of incident radiation. उन्हें ऑब्जर्व किया ये एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी उससे नीचे फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे देन देयर विल बी नो फोटो इमिशन, चाहे मेरा इंटेंसिटी जितना ही क्यों ना कर दें. वाई? बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी मेरा जो बहुत ही कम है तो उसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी होगा दैट विल बी लेस, which will be less than work function, so emission of electron will not take place. And the minimum frequency below which no emission of electrons takes place is known as threshold frequency. Third point is above the threshold frequency, a stopping potential which is equivalent to maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to frequency of the incident radiation. It means that when frequency will be more, energy possessed by will be more, right? Energy possessed by that very photon will be more, some amount of energy will be used in work function for emission of electron, and rest energy will be used by electron in kinetic energy. And this very kinetic energy is equivalent to a stopping potential. That's why we used to say a stopping potential which is equivalent to maximum kinetic energy is directly proportional to frequency of the incident radiation, and it is independent of intensity. यह जो stopping potential होगा, maximum kinetic energy होगा, that will be independent of intensity. Fourth point is the photoelectric emission is an instantaneous process. यह जब photoelectric emission process होता है वह instantaneous process होता है. It is quick process. No time is taken by the process. Means the time interval between incident of radiation and emission of photoelectron is quick process, means instantaneous process, and time is near to of the order of 10 to the power minus second. It means that एकदम बहुत जल्द होता है, फोटोन का इंसिडेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया और तुरंत इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है. राइट? Now in this very case, in case of photoelectric effect, we used to say our classical wave theory fails. अब मेरा जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वह फेल हो जाता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. मीन्स वी यूज टू से वेव थ्योरी
is unable to explain photoelectric effect. Question is this, कि how we can say our wave theory is unable to explain photoelectric effect. Then now come over the fact. We used to say when a wave moves in forward direction, अगर वेव मेरा जो है प्रोसीड करता है आगे, then its energy also proceeds in forward direction. Means its energy remains present at each and every position in uniform way. It means that energy density at each and every point will be same, right? And when intensity will be more, greater the intensity of incident radiation, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी अधिक होगा तो हर एक जगह एनर्जी भी अधिक हो जाएगा. मीन्स ग्रेटर विल बी एनर्जी डेंसिटी. एंड व्हेन ग्रेटर विल बी एनर्जी डेंसिटी, इट मीन दैट अगर एनर्जी डेंसिटी अधिक हो जाएगा, इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव करेगा दैट विल बी also more. And when energy received by the electron will be more, it means that after emission kinetic energy possessed by the electron that will be also more, right? That will be also more. But we used to say maximum kinetic energy of the photoelectrons does not depend on the intensity of incident radiation. कहने की बात यह हुई कि जिस तरह वेव फ्रंट आगे प्रोसीड करता है उसकी एनर्जी आगे प्रोसीड करती है, और अगर कंटिन्यूअस फोटोन्स का इंसिडेंट होता जाएगा तो एनर्जी कंटिन्यूअस मिलता जाएगा. इट मीन दैट व्हेन intensity will be more, then incidence of energy will be more, then you can say energy density at each and every point will be also more. So each and every electron will get more amount of energy. When intensity will be more, then each and every electron will get large amount of energy. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा. मीन्स काइनेटिक एनर्जी will depend on intensity of the incident radiation. Theory says, but really maximum kinetic energy does not depend on intensity of incident radiation. Second point is, our wave theory is unable to explain the existence of threshold frequency. अभी आपने यह कहा कि जो है when intensity will be more, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत कम भी है लेकिन इंटेंसिटी अधिक होगा तो उसका जो एनर्जी होगा, हर एक फोटोन्स का एनर्जी जो है थोड़ा थोड़ा ही होगा, बट दैट विल बी कंटिन्यूसली, दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड व्हेन इंटेंसिटी विल बी मोर, देन एनर्जी डेंसिटी विल बी मोर, एंड देन इलेक्ट्रॉन विल रिसीव एनर्जी. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विल रिसीव एनर्जी, इट मीन दैट after some time each and every electron will get large amount of energy and then emission of electron will take place. But really when frequency will be less than threshold frequency, then no emission of photoelectrons takes place. Means wave theory says that emission will take place, but really it does not take place. That's why we used to say our wave theory is unable to explain. Our wave theory is unable to explain existence of threshold frequency. Right? And listen, you are saying कि एक फोटोन का एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इस मीन्स जो अगर उसका एनर्जी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मीन्स उसका एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा लेगा, तो इसका मतलब जो है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होने में ढेर सारे फोटोन पड़ेंगे तब जाकर होगा. मीन्स इट विल टेक टाइम. और अगर यह टाइम लेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कई इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ जा रही है, तो उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड उसकी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होने में समय लगेगा. इट मीन दैट इट शुड नॉट बी अ क्विक प्रोसेस, इट शुड time taking process, but really we know that it is instantaneous process. That's why we used to say each electrons accept very small amount of incident energy.
so it should require finite time to escape from the metal surface, but actually process is almost instantaneous, right? It means that we can say our wave theory is unable to explain this very photoelectric effect. Means we can say we can't define our photoelectric effect by the help of wave theory. It is defined by the help of particle theory. नाउ कम ओवर कि इसमें जो है जब इसको वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था तो जो है आइंस्टीन साहब ने इसकी फोटोन थ्योरी दी, पार्टिकल थ्योरी दी, पार्टिकल के बेसिस पर मान करके इसको डिफाइन किया और इन्होंने जो लॉ दिया, नाउ कम ओवर दोज फैक्ट्स. आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ Planck's quantum theory. Planck's quantum theory, according to which radiation travels in the form of discrete photons having energy h nu. We used to say आइंस्टीन साहब ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया बाय कंसिडरिंग लाइट एज पार्टिकल. इन्होंने यह माना कि लाइट जो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है वह फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है, क्वांटा के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है. क्वांटा मीन्स पैकेट के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है, हुज नेम इज़ फोटोन, मीन्स फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है. और अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन एनर्जी पोजेड बाय ईच एंड एवरी फोटोन विल बी एच न्यू, राइट. What are the main points of Einstein's theory of photoelectric effect? तो जो पहला पॉइंट है वह है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल. यह जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होता है दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है. पहला पार्टिकल है वह फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोसेंसिटिव मटेरियल का मीन्स सरफेस का मीन्स मेटल का इलेक्ट्रॉन जिसका कि इमिशन होना है. दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है. आफ्टर गेट फोटोन का इंसिडेंस हुआ, उसका एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रिसीव किया. इफ दैट वेरी एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. नंबर 2 इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. जो एनर्जी हमने इंसिडेंट कराया उसी हम जो फोटोन हमने इंसिडेंट कराया उसका जो एनर्जी होगा इक्वल टू एच न्यू फार्मूला के अकॉर्डिंग, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी इतना होगा. इतने एनर्जी में से एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के सरफेस से निकालने में खर्च होता है, and that very energy is known as work function of the metal which is denoted by phi 0 or W0. मीन्स E में से इतना चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बाकी बचता है एनर्जी दैट इज पोजेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन. एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होगा. जो वेव थ्योरी कहता था कि नहीं फोटोन का एनर्जी इंसिडेंट हो गया तो उसका एनर्जी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन्स एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गया, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो है थोड़ी थोड़ी एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा चाहे फ्रीक्वेंसी अधिक भी क्यों ना हो. रियली इन्होंने बोल्डली कहा ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा, और अगर वह फ्रीक्वेंसी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरी फोटोन इज मोर देन वर्क फंक्शन मीन्स यू कैन से मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी जो होगा दैट विल बी मोर देन वर्क फंक्शन. इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और बाकी एनर्जी जो है दैट विल बी पोजेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. And we used to say some part of incident energy is used as work function, whereas rest part is used by the electron in the form of kinetic energy.
energy, right? एंड देन वी कैन से कि इसका मतलब हमने जो फोटोन इंसिडेंट कराया उसके पास जो एनर्जी है वह एनर्जी दो फॉर्म में यूज हो रहा है. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूज, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज इन वर्क फंक्शन, वेयर एज रेस्ट पार्ट इज यूज बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट. इट मीन दैट अगर जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी अगर न्यू था और उसकी एनर्जी अगर ई है, then we can say E will be equal to phi 0 plus E के मैक्स. मीन्स कुछ एनर्जी, उसका एनर्जी जो है कुछ वर्क फंक्शन में गया और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया, राइट. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज न्यू देन इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी एच न्यू. अगर जो है उसका वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी अगर न्यू जीरो है देन वी कैन राइट फाइव जीरो विल बी इक्वल टू एच न्यू जीरो एंड इट प्लस इट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट. इट मीन दैट वी कैन राइट एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. और यही जो है काइनेटिक एनर्जी, इसी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए एनोड के पोटेंशियल को निगेटिव करना पड़ता है. तो जितना निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस ई वी जीरो, राइट. नाउ इट मीन एंड दिस वेरी फॉर्मूला एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस ई वी जीरो और एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर is the formula which is given by Mr. Einstein to explain photoelectric effect. Means you can say this very formula explains energy distribution which works on the basis of law of conservation of energy in photoelectric effect. Then now question is this कि आइंस्टीन जो है जो डिफरेंट फिनोमेना लेनार्ड एंड आर ए मिल्टन ने ऑब्जर्व किया उसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया. देन फर्स्ट कम ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का क्या असर होगा करंट पर. तो हम लोग तो स्टडी किए थे कि विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी करंट फोटो करंट इंक्रीजेज. हाउ? तो इन्होंने क्या बताया, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स. जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटोन बढ़ा रहे हैं, राइट. मीन्स पर यूनिट टाइम अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो पर यूनिट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन हम लोग बढ़ा रहे हैं. एंड वन थिंग इज ईच फोटोन एज वी यूज टू से ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगा. तो अगर इंटेंसिटी अधिक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन अधिक है, सो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी आल्सो मोर. नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी आल्सो मोर. अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अधिक होगा देन करंट विल बी आल्सो मोर. दैट्स व्हाई वी यूज टू से current increases with increase in intensity of incident radiation. Current increases, photoelectrons increases with increase in the intensity of incident radiation, or current increases with increase in the intensity of incident radiation. Second one come over explanation of threshold frequency. एक्सप्लानेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया. उन्होंने यह कहा कि एज वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड इफ फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम वेरी वेरी लो, तो उसकी एनर्जी कम होगी. और अगर वह एनर्जी इफ दैट वेरी एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. इट मीन दैट in frequency of incident radiation should be always more than threshold frequency for emission of photoelectron, right. Photoelectric emission cannot occur below threshold frequency. Explanation of kinetic energy. और उसके बाद उन्होंने यह कहा
कि अगर कोई फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी जो भी होगी उसका कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में जाएगा और बाकी एनर्जी जो है दैट विल बी पोजेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट मीन दैट व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर then kinetic energy will be also more. And we used to say maximum kinetic energy of the electron increases linearly with the frequency of incident radiation. अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है इंसिडेंट रेडिएशन का, इंसिडेंट फोटोन का, तो उसके पास एनर्जी अधिक है. वर्क फंक्शन में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा. मीन्स kinetic energy will be more. It means that more frequency, more kinetic energy, right? The increase in intensity, अगर इंटेंसिटी बढ़ता है तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, राइट. इट मीन दैट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी मेरी नहीं बढ़ी है, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट इंक्रीज. इट मीन दैट maximum kinetic energy does not increase with increase in intensity of the incident radiation. And we used to say the increase in intensity increases only number of incident photons and not their energy. So maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of intensity of incident radiation, right? And now come over one more explanation of time lag. जो हम लोग यह कह रहे थे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हर एक फोटोन जो होता है, हर एक फोटोन का एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो है बहुत थोड़ी थोड़ी एनर्जी आती है. इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बाद बराबर एनर्जी गेन करने में समय लगेगा. इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में, सरफेस से बाहर निकलने में समय लगेगा. मीन्स देयर विल बी टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट बाय कंसिडरिंग पार्टिकल नेचर, आइंस्टीन साहब ने कहा द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ई फ्रॉम ए फोटोन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of the continuous absorption of energy. या continuous absorption नहीं होगा, बस एक बार में पूरा एनर्जी वो ले लेगा. and hence there is no time lag between the incidence of photon and emission of photoelectron. Means process will be instantaneous, right? Okay, my dear.